السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتا؟ ہمارے کپڑوں پر چائے گرا دیا۔ گلناز سامنے کھڑے اپنے کزن کو غصے سے بول رہی تھی۔ تم دیکھ کر چلو، میں دیکھ کر ہی چل رہا تھا۔ تمہیں روکنا بھی چاہا لیکن تم منہ نیچے کیے چل رہی تھی۔ منان خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور وہ ناک چڑھا کر اسے دیکھنے لگی۔ پہلے ہم کو یہ بتاؤ تم ہے کون اور عورتوں کے سامنے منہ اٹھا کر کیوں چلا آیا؟ گلناز نے کمر پر ہاتھ ٹکا کر بڑی اماؤں کی طرح اسے گھورتے ہوئے سوال داغا کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا کہ اسے منان خان کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ میں تمہارا کزن ہوں جس کے سامنے تم منہ اٹھا کر چلی آئی ہو۔ اس نے بھی حساب برابر کرتے کہا کہ گلناز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ماڑا تم منان لالا ہے؟ اس نے حیرت سے باہر آتے خوشی سے پوچھا۔ ماڑا تم تو بڑی اعلیٰ قسم کا اردو بولتی ہو۔ منان خان کو ہنسی آئی تھی لیکن وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے اپنی کزن سے پہلی ملاقات خاصی پسند آئی تھی۔ لالا تم تو ودیش میں جا کر سوٹ بوٹ والا ہو گیا۔ اس نے منان کو بہت چھوٹی عمر میں دیکھا تھا اور اتنے سال بعد اسے اب دیکھ رہی تھی۔ ارے نازے، یہ تم منہ ڈھانپے بنا منان سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ منان کی اماں اور گلناز کی تائی نے پیچھے سے آتے سختی سے ٹوکا، جس پر گلناز نے گوٹے والی چادر کو کونا دانتوں میں دبا لیا۔ میں جہاں پر بھی چلا جاؤں لیکن میری رگوں میں جو خون ہے وہی رہے گا۔ گلنازے، منان نے اس کا نام بگاڑتے ہوئے کہا کہ گلناز نے تائی کو دیکھا جیسے وہ شکایت کر رہی ہو۔ نازے، آئندہ لالا کے سامنے منہ چھپا کر جانا۔ اس کی تائی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ سر ہلاتی ہوئی چائے کا کپ اٹھانے لگی جو منان کے ٹکرانے پر زمین پر گر گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی قمیض پر ڈالی۔ منان کی وجہ سے اس کی قمیض گندی ہو گئی تھی۔ لالا کو پتہ نہیں ہے کتنی محنت سے کپڑے دھلتے ہیں، کبھی دھوئے ہو لالا نے تو پتا ہو۔ مڑا میرے کپڑے گندے کر گیا لالا۔ اس نے سیڑھیاں عبور کرتے مسلسل دہائی دی۔ گلمینا، تجھے پتا ہے لالا واپس آ گیا ہے؟ گلناز نے اپنی دوسری کزن کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ لالا سے بچ کر رہنا گلناز، وہ بہت سخت قسم کا انسان ہے۔ گلمینا نے اسے وارن کیا تھا لیکن گلناز نے کندھے اچکا دیے۔ ارے گلے، وہ ودیش والا کھلے دماغ کا مرد ہے۔ ہم کو یقین ہے وہ عورتوں پر ایسی پابندی نہیں لگاتا ہوگا جیسے ہمارے لالا لگاتے ہیں۔ گلناز نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہیں لالا سے ملے کتنی دیر ہوئی ہے جو تم ان کے بارے میں ایسے اندازے لگا رہی ہو گلناز؟ وہ کتاب میں سے چہرہ اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ ابھی ہم کو شام کو تو ملا، اس نے ہمارا چہرہ بھی دیکھا۔ گلناز بڑی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بتا رہی تھی۔ منان خان کی رگوں میں اس حویلی کا خون دوڑتا ہے نازے، اسے دور رہ ورنہ وہ بڑی مشکل بن سکتا ہے۔ گلمینا نے اسے پھر دوبارہ سختی سے وارن کیا تھا۔ وہ منہ بنانے لگی کہ ہر کسی کو وہی ملتی ہے وارن کرنے کے لیے۔ تائی، چچی اور اس کی ماں سب کے سب اسی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ جا، چل سو جا، صبح کا کام ویسے بھی تیرے ذمہ ہے اور پھر مجھے ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ گلناز کو کیوں جلدی نہیں سلایا؟ گلمینا نے اسے بستر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ روحانسی ہوتی بولی اور اس سے دور ہو گئی۔ آج چھت پر بھی نہ جاؤں؟ اس نے امید بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا کہ گلمینا نے اسے مارنے کے لیے کتاب اٹھائی۔ چلی جا گلناز، اس نے اس کا نام چباتے ہوئے کہا۔ جا رہی ہوں گلمینا، تجھے لالا سے محبت ہو جائے۔ وہ جاتے ہوئے اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ گلمینا نے اس کے منہ پر واقعی تکیہ دے مارا تھا اور وہ بستر پر لیٹ کر ہنسنے لگی۔ وہ ایسی ہی شوخ اور چنچل تھی جس کی وجہ سے گلمینا اسے تنگ کرتی تھی، لیکن ابھی اس کا موڈ آف تھا۔ منان خان سے اسے ڈانٹ پڑ گئی تھی اور وہ اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ گلناز بنا جانے اسے چھیڑ رہی تھی۔ گلمینا نے ایک نظر بستر کی طرف دیکھا۔ اس کے پاؤں بستر سے نیچے لٹک رہے تھے اور وہ سوتے ہوئے نہ جانے کون سی جنگ پر نکلی ہوئی تھی۔ گلمینا اٹھی اور ہمیشہ کی طرح اس کے ہاتھ پاؤں اوپر بستر پر کر کے چادر ڈال دی۔ وہ روز رات کو آنکھ کھولتے ہی یہ کام کرتی تھی۔ گلناز بے ڈھنگے طریقے سے سو جاتی۔ اس کی ماں اور گلمینا کی چاچی نے کہا تھا، گلناز کو کچھ ڈھنگ سکھاؤ۔
लेकिन वो उल्टा इसे सिखाने बैठ जाती थी। गुलमीना को सिखाने की नौबत ही कब आती थी। सुबह वो नींद में डूबी हुई उठी और किचन में आ गई। उसका इरादा था जल्दी से सबको नाश्ता करवाकर दोबारा बिस्तर पर ढह जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा होना मुमकिन नहीं था। मनान खान के आने की खुशी में आज काम ज्यादा था। खीर बनाने का इसे हुक्म मिला था और वो मुंह बनाती चावल भिगो रही थी। खीर बन जाए तो मर्दान खाने में दे आना, मनान समेत सारे मर्दों को। ताई ने गुलनाज से कहा तो वो कहकर रह गई। गुलमीना ने हंसकर उसे देखा जो बेदिली से खीर बनाने में लगी हुई थी। गुलनाज पर आज काम का पहाड़ टूटा हुआ है। गुलमीना ने मजा लेते हुए उसकी शक्ल देखी। उसने बेजारी से इसे देखा। गुलमीना, काश उस बंदे की शादी तुझसे हो जाए, मैं बहुत खुश होंगी। गुलनाज ने उसे दोबारा बद्दुआ दी थी। मनान लाला मुझसे बहुत बड़े हैं नाज़े। उसने भी हंसते हुए गुलनाज की बद्दुआ को खातिर में नहीं लिया। गुलमीना, ये लाला कब जाएगा? हम एक दिन में बेजार आ गया है इस लाला से। काश सारी जिंदगी विदेश में गुजार देता। नौकरानी भी उसकी बात सुनकर खी खी कर रही थी। ताई को हार्ट अटैक आ जाता। गुलमीना ने मुस्तकबिल का नक्शा खींचा। लाला को खीर अपने हाथों से खिलाऊंगी मैं, उसने गुस्से से प्यालियों में खीर निकालते हुए कहा। पीछे से गुलमीना की आवाज आई। गुलनाज, अपनी बात पर कायम रहना, दादी के सामने करना ये काम। उसने पीछे से हाँक लगाई तो गुलनाज पैर पटक कर रह गई। हमको पागल समझा है क्या? सारे मर्दों ने सर उतार देना है, उसने गर्दन दाएं बाएं हिलाते हुए कहा और सीढ़ियां उतरकर मर्दान खाने में आने से पहले चेहरे पर पल्लू डाला। वहां बाकी कजन्स भी मौजूद थे जिनके सामने उसे चेहरा दिखाने की इजाजत नहीं थी। गुलनाज, सबसे पहले अपने मन्नान को खीर की प्याली पकड़ाओ। दादी ने मुस्कुराते हुए मोहब्बत से मन्नान को देखा। वो बदले में मुस्कुरा दिया और गुलनाज के हाथ से प्याली थामने लगा और अचानक गलती से गुलनाज की उंगलियों को मन्नान की उंगलियों ने छुआ था। उसने प्याली छोड़ दी और उसकी गोद में खीर समेत प्याली जा गिरी। ये क्या किया पागल लड़की? गरम खीर ने मन्नान के पांव को छुआ तो वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और गुलनाज को घूरने लगा। दादी, इसने हमारे हाथ छुए थे। गुलनाज ने सब मर्दों के सामने उसकी इंसल्ट कर डाली। प्याली पकड़ते हुए हाथ लगा था, छुआ नहीं है जानबूझकर। पागल लड़की, अभी तक तुम्हारा बचपना खत्म नहीं हुआ। मन्नान खान ने गुस्से से गुलनाज को अच्छी खासी सुना दी कि उसे रोना आने लगा। दादी, लाला को वापस विदेश भेज दे, उसने मन्नान खान को घूंघट के पीछे से घूरते हुए सूं सूं की आवाज के साथ कहा। तुम्हारी यहाँ बात कौन सुनेगा? वो दोनों किसी को देखे बिना काम करने में मसरूफ थे। हम आपको माफ नहीं करेगा, उसने गुस्से से प्याली ट्रे में रखी। तुमसे माफी किसने मांगी है बेवकूफ लड़की? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आज का दोपहर और रात का खाना तुम बनाओगी। मन्नान खान सब कजन्स में बड़ा था और उसे फैसले करने का इख्तियार था, इसीलिए उसने लगे हाथ गुलनाज को सजा भी दे डाली, जिसे सुनते ही गुलनाज के होश उड़ने के करीब थे। हम तुम्हारा बात क्यों माने? गुलनाज ने मुट्ठी भींचकर पूछा। गुलनाज, मन्नान खान इस हवेली का आने वाले सरदारों में से है। इसकी बात मानना तुम पर फर्ज है और आइंदा तुम इसे जबान नहीं चलाओगी। दादाजी ने उसे सख्ती से कहते हुए जाने का इशारा किया। वो जल्दी से बाहर निकली और किचन में ट्रे पटक कर चेहरे से घूंघट उठाकर जो रोई तो गुलमीना से उसे संभालना मुश्किल हो गया। गुलनाज, किसने रुलाया है? उसके साथ किचन की जमीन पर बैठती पूछ रही थी। लाला ने, उस लाला ने, वो गुस्से से रोती हुई कह रही थी। गुलमीना ने गहरी सांस ली कि उसे पता था वो सरदारी का रोग जरूर जमाएगा। उसकी रगों में इस हवेली का खून था। छोटी सी औरत से हुई गलती बहुत बड़ी लगती थी। माफ करना और दरगुजर करना वहां के मर्दों को आता ही कब था। गुलमीना ने बहुत मुश्किल से गुलनाज को चुप करवाया और जाहिर था उसे मन्नान खान की सजा पूरी करनी थी, इसीलिए वो दोपहर की पूरी हवेली का खाना बना रही थी। गुलमीना उसकी मदद करने को कहती तो वो उसे दूर कर देती। मेरी दी हुई सजा कैसी चल रही है? मन्नान खान ने किचन में दाखिल होते हुए पूछा। नौकरानी बाहर निकल गई जबकि गुलमीना ने पल्लू चेहरे पर डाला और गुलनाज ने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की। वो जिद में बगावत पर उतर आती थी। गुलमीना,
बाहर जाओ जरा, उसने गुलनाज को देखते हुए कहा, जो प्याज काटते बार बार मुंह पर आए बालों को पीछे कर रही थी। तुमने मेरे आने पर मुंह क्यों नहीं ढांका? वो उसकी जानिब देखते हुए पूछ रहा था। नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। बेतहाशा रोने के सबब उसका चेहरा सफ़ेद से सुर्ख हो गया था। तुमने हमारा चेहरा देखा है, अब ये नाटक करना ज़रूरी है? उसने सख्ती से सर्द नजरों से घूरते पूछा। इस हवेली का जो कानून है वो ता क़यामत चलेगा, इसलिए बगावत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगाम डालनी आती है। उसने शानों पर फैला गुलनाज का दुपट्टा उठाकर सर पर डाला, जिससे उसका चेहरा छुप गया। अब ये सज़ा घूंघट लेकर पूरा करूं? उसने गुस्से से पूछा। छुरी तेजी से प्याज को काट रही थी। मेरे जाने पर हटा देना, और याद रखना, गलती पर 1 महीना काम करने की सज़ा मिलेगी। तुमने जानबूझकर प्याली छोड़ी थी ताकि तुम उस दिन का चाय का बदला ले सको। उसने समझते हुए, सर हिलाते हुए, बात समझते हुए कहा कि गुलनाज ने गुस्से से छुरी दिखाई। हम तुम्हारा मुंह पर फेंकेगा जब जानकर करेगा। उसने अपने आगे के प्लान से आगाह किया तो वो उसे सख्त नज़रों से घूरने लगा। ऐसा ना हो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दे दूं कि फिर तुम उससे आज़ाद ना हो पाओ। अपनी ये बागी फितरत ख़त्म करो वरना पछताओगी। उसने वॉर्न करते कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए। गुलनाज ने गुस्से से उसकी पुश्त को देखा और छुरी दरवाजे की तरफ उछाली। वो पहले ही निकल चुका था। वह गुस्से से दुपट्टा उतारकर पाँव में रौंद रही थी तो गुलमीना ने आकर उसे काबू किया। गुलनाज, गुस्सा नहीं करते। उसने दोनों हाथ थामकर उसे ठंडा करना चाहा। वो रोने लगी। फिर गुलमीना ने उसका खाना बनाने में मदद की। वो मुसलसल मनान खान को कोस रही थी और वो सुनते हुए काम करती रही। नौकरानी भी अफसोस से गुलनाज को देख रही थी, जो अपनी मौत को खुद दावत दे रही थी। सब जानते थे मनान खान बाकियों के मुकाबले में ज्यादा सख्त है। खाना बना लिया गया था और सबने पसंद भी किया था। मनान नुक्स निकालना चाहता था, लेकिन दादा जान ने पहले कह दिया, खाना अच्छा बना है। ऊपर छत पर शाम का सुनहरी मंजर वो हमेशा एंजॉय करती थी, इसीलिए आज 3 दिन बाद ऊपर आई थी। उसने गमले की जानिब निगाह की, जिसे देखकर उसका दिल हौल उठा। फूल मुरझा रहे थे। उसने जल्दी से माली को आवाज लगाकर ऊपर की जानिब का वॉल खुलवाया और पौधों को पानी देने लगी। एक एक गमले को अच्छे से तर करके वो मजे से सामने नजर आते कपल को देख रही थी, जो न जाने इतने करीब खड़े क्या बात कर रहे थे। उसके हाथ से पाइप कहाँ जा रहा था उसे कोई इल्म नहीं था। उसने पाइप का रुख बेध्यानी में हवेली के दरवाजे की जानिब कर दिया और मनान खान आज अपने दोस्तों के पास तैयार शयार होकर मिलने निकला ही था कि उस पर खुसूसी बारिश होने लगी। वह हैरानी से पानी के नीचे खड़ा था। उसने इर्द गिर्द देखा, सब सूखा पड़ा था। उसने फौरन आगे होकर ऊपर की जानिब निगाह डाली तो उसे गुलनाज की पुश्त नजर आई और पाइप का रुख बाहर की जानिब किए वो न जाने क्या दरियाफ्त करने में मसरूफ थी। गुलनाज, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। वो ठुठक कर पलटी और मुंह पर हाथ रखे मनान खान को देखने लगी। उसने पाइप का रुख दोबारा बेध्यानी में उस पर कर दिया था। वो गुस्से से दूर हुआ। लाला गलती से हुआ। उसने कान पकड़ने के चक्कर में पाइप छोड़ा ही था। वो दोबारा मनान पर पानी बरसाने लगा। गुलनाज, उसने चबाते हुए अब के गुस्सा बर्दाश्त ना किया तो बाहर वाली सीढ़ी से ऊपर की जानिब 2-2 सीढ़ियां छोड़कर छोड़ता हुआ आया, जल्दी से उसे अपनी गिरफ्त में ले सके। तुम्हारे साथ मसला क्या है गुलनाज? वो गुस्से से पूछ रहा था और वो भागने का रास्ता देखने लगी। इससे पहले कि वो भागती, मनान खान ने पाइप उसके हाथ से छीन लिया। तुम्हें बताता हूं अभी। वो उसकी जानिब पाइप का रुख किए खड़ा हो गया और वो पूरी तरह भीग रही थी। लाला कोई देख लेगा। वो डर के मारे उसके हाथ से पाइप पकड़कर उसे रोक रही थी। अचानक इस पकड़म पकड़ाई में वो मनान खान के ऊपर जा गिरी। वो नीचे और गुलनाज उसके ऊपर थी। उसके चेहरे पर टपक कर पानी मनान खान के चेहरे पर गिर रहा था। लाला, सच कह रही हूँ, गलती से हो गया। हमने जानबूझकर तुमको निशाना नहीं बनाया था। वो उसके ऊपर ही लेटे लेटे बताने लगी। वो अपने सर के नीचे दोनों हाथों की हथेली रखे लेटा था। मनान खान, दादी की पास से आवाज आई तो वो दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। मुझसे मिलो कमरे में। वो दोनों को घूर कर चले गए, जबकि गुलनाज ने इतना संजीदा ना लिया और कपड़े झाड़ने लगी।
अगर कुछ गलत हुआ ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी गुलनाज। तुमने मुझे तीसरी बार चेहरा दिखाया है, इसकी सजा भी मिलेगी। वो उसकी जानिब उंगली उठाकर कहता चला गया। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, उसने पीछे से ऊंची आवाज में कहा तो वो घूर कर चला गया। उसे परवाह भी नहीं थी। वो भीगी हुई उसके सामने धड़ल्ले से खड़ी थी। न जाने इस लड़की की अकल कहाँ थी। शुक्र है उस खड़ूस का शादी हो रहा है, कल निकाह है। अच्छा है हमारा जान छूट जाएगा उस खड़ूस से। गुलनाज को जब से मालूम हुआ था दादा जान ने उसकी शादी तय कर दी है तो वो बहुत खुश थी। वही था जिसकी वजह से आए रोज सजा मिलने लगी थी। उसने तो ये सुनते दुआ की थी वो अपनी बीवी के साथ शहर चला जाए। वो मजे से किचन में खड़ी गाजर को तरती हुई कह रही थी और उसके लब मुस्कुरा रहे थे। उसकी मौजूदगी से बेखबर नौकरानी से उसकी बुराई कर रही थी। उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो बेचारी किस्मत की मारी लड़की कौन है जिससे मनान खान का निकाह हो रहा है। उसने अंदर आते ही नौकरानी को इशारा किया। उसका इशारा समझकर मुलाजमा बाहर चली गई। वो उसका जवाब ना पाकर मुड़ी थी कि उसकी सांस रुक गई। वहां मनान खान सीने पर बाजू लपेटे खड़ा था। हाँ, तुम क्या कह रही थी? वो पहले ही गुस्से में था, मजीद इसकी गुल अफशानी पर और गुस्सा आने लगा। नहीं लाला, हम तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा। वो नफी में सर हिलाते अपनी चादर ढूंढ रही थी। एक तो उसके अलावा कोई मर्द किचन में नहीं आता था, इसलिए वो दुपट्टा उतार कर रखती थी, लेकिन वो था कि आकर सर पर पहुंच जाता। झूठ बोलने पर तुम्हारी 2 सजा होगी अब। वो चलता हुआ उसके करीब आकर सर्द लहजे में बोला जब वो कांपती हुई पीछे हो गई कि उसने गुलनाज को देखा। तुम पहले बिना मुंह ढांपे होती थी और आज बिना दुपट्टे के खड़ी हो। तुम मेरे सामने ऐसी हरकतें करती हो या यहाँ के बाकी मर्दों ने भी तुम्हें देखा है? उसने गुस्से की शिद्दत से उसके कंधे दबोच कर पूछा। माड़ा, तुम्हारे अलावा हमारे इर्द गिर्द कोई आए तो देखे ना। तुम वदेर से बेशर्मी की डिग्री लेकर आया है। वो आंखें मीचे हुए बड़े आराम से उसकी दूसरी बार इंसल्ट कर चुकी थी। बस कुछ वक्त ठहर जाओ, सारी शर्म बलाए ताक रख दूंगा। वो उसके चेहरे को देखने लगा जो चेहरा उठाए उसे देख रही थी। सजा क्या देगा हमें? उसने डरते हुए पूछा। पहली सजा। वो लम्हा भर को रुका। कल सबके सामने मिलेगी। गुलनाज के चेहरे पर खौफ और उलझन का इम्तिजाज छा गया था। उसकी बात सुनकर सबके सामने बेशर्मी दिखाएगा। और दूसरी सजा, तुम्हें याद दिलाता रहूंगा कि तुमने मेरे बारे में क्या कहा था। गुलनाज की आवाज कांप गई। मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो लबों पर जबान फेरती बोली। मैं मजाक नहीं करता। उसने एक जुमला कहा और पलट कर चल दिया। जाते जाते बस इतना बोला, कल तैयार रहना। वो उसको घूरते हुए वहां से हट गया। उसके जाने के बाद गुलनाज ने आंखें खोली। खड़ूस, बेशरम, बीवी आने वाला है लेकिन फिर भी इधर उधर मुंह मार रहा है। मनान वहां अपना वॉलेट लेने आया था जो किचन में गिर गया था। उसकी मजीद बातें सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। मैं निकाह के बजाय अपनी बीवी को कल बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। निकाह नहीं, साथ रुखसती भी होगी। उसने गुलनाज को देखते हुए कहा और वो नासमझी से देखने लगी। मड़ा, तुम जो भी करो बस हमारा पीछा छोड़ दो। वो हाथ जोड़ने किसी अंदाज में कहती दुपट्टा उठाकर किचन से निकल गई। मनान खान के लब मुस्कुराए थे। गुल बीबी, कल बताता हूँ तुम्हें। उसका रिएक्शन सोचकर मनान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वो सोच सोच कर ही खुश हो रहा था। सारी रात बारिश होती रही। गुलमीना बहुत ज्यादा खामोश थी। न जाने क्यों उसने पूरा दिन गुलनाज से कोई बात न की। उसे उसकी माँ ने कुछ आकर दिया था और गुलमीना ने उसके चेहरे पर वो लगा दिया। कल लाला का निकाह है, तो मुझे क्यों तैयार कर रहा है? उसने हैरत से पूछा। हम सभी तैयारी कर रहे हैं गुलनाज। तुम्हारी तैयारी कुछ खास होगी। तुम्हारा भी निकाह है? उसने अचानक से कहा तो गुलनाज उठ खड़ी हुई। सच? मड़ा, हमारा निकाह है? वो खुशी से झूम उठी थी। मड़ा, हमारा जानान कौन है? वो शर्माते हुए पूछ रही थी और गुलमीना ने उसके कंधे पर हाथ मारा। मड़ा, कल का इंतजार करो, कल तुमको मालूम हो जाएगा। उसे बताने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने नाम बताने से गुरेज किया। हम तो बहुत खुश हैं, बस जो भी हो वो इस खड़ूस लाला से दूर ले जाए।
اس کی بات سن کر گلمینا پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اسے بتا دینا چاہتی تھی لیکن کیسے بتاتی؟ وہ نکاح کا سن کر خوش تھی اور معلوم ہو جانے پر دادا جان کے سامنے کھڑے ہو جاتی اور اس کے ساتھ گلمینا پر بھی آفت ٹوٹ پڑتی۔ اس لیے کل نکاح کے وقت ہی گلناز کا جاننا بہتر تھا۔ رات سے جو بارش شروع ہوئی تھی وہ صبح تک ہوتی رہی اور رات دیر تک گلناز نے منہ پر ڈھیر سارے ٹوٹکے لگا لیے تھے کہ اس کا نکاح ہے، اسے اچھا لگنا چاہیے۔ بارش کے بعد اب ہلکی سی نمی ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے بڑے حویلی نما گھر میں صبح سویرے کی چہل پہل عروج پر تھی۔ برآمدوں میں بچیاں ہنستے کھلکھلاتے جھاڑو دے رہی تھیں، صحن میں بیٹھی بڑی بوڑھیاں حقہ پی رہی تھیں اور بیچ بیچ میں نکاح کی تیاریوں پر تبصرہ بھی کر رہی تھیں۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی سرشاری تھی، جیسے یہ نکاح صرف ایک تقریب نہیں بلکہ خاندان کی عزت اور شان کا مسئلہ ہو۔ گلناز اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے سر جھکائے تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی اور لبوں پر عجیب سا سکوت تھا۔ پچھلی رات سے وہ ایک بار بھی کھل کر نہیں سو سکی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ اس کا نکاح ہونے والا ہے اور وہ بس جو بھی ہو لالا کی طرح کا سخت نہ ہو۔ آج وہ اسی یقین کے ساتھ تیار ہو رہی تھی کہ اس کا نصیب اسے کہیں اور لے جائے گا۔ ہلکی سبز رنگ کی قمیص پر سنہری کام کیا ہوا دوپٹہ اس کے سر پر سلیقے سے رکھا جا رہا تھا۔ اماں اور گلمینا باقی کزنز اس کے گرد گھوم گھوم کر تیاریوں میں مصروف تھی۔ نازے بس تھوڑا سا صبر کر، آج تیری قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ اماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ گلناز نے ہلکا سا مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ ان کی شادیاں ایسی ہی ہوتی تھیں، نکاح کے وقت معلوم ہوتا تھا کہ میاں کون ہے۔ اسے یقین تھا اس کی ماں اور دادا جان اور بابا اس کے لیے اچھا فیصلہ کریں گے۔ وہ لالا کو بتانے کا سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے بہت دور جانے والی ہے۔ وہ اب بات بات پر کس کو سزا دے گا؟ وہ مکمل تیار ہو کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کمرے کے باہر بڑے برآمدے میں منان خان کھڑا تھا۔ سفید کرتا شلوار، ہلکی بھوری واسکٹ اور چہرے پر ایک سنجیدہ مگر سخت تاثر۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہو رہا بلکہ داجان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اس بندھن میں بندھنے جا رہا ہے۔ منان خان نے برسوں امریکہ میں رہ کر آزادی کی زندگی گزاری تھی، لیکن آج وہ گاؤں کی روایت کے مطابق شادی کر رہا تھا۔ کل گلناز اور منان خان کو ایک ساتھ قریب دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ وہ گلناز کو سمجھانے کے لیے جاتا تھا لیکن داجان نے اس کا غلط مطلب لے لیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ نہ جانے اس کی ساری زندگی اس لڑکی کے ساتھ کیسے گزرے گی جسے اردو تک بولنا نہیں آتی تھی۔ لالا لالا کر کے وہ اسے غصہ نہ دلا بیٹھے۔ نکاح کے کمرے میں مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ گواہان اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ عورتوں کے حصے میں پردہ لگا ہوا تھا جہاں گلناز بیٹھی تھی۔ دوسری طرف مردانہ حصے میں منان خان اور باقی سب بیٹھے تھے۔ دلہن کا نام گلناز دختر یوسف خان۔ مولوی صاحب کی گونجتی آواز نے سب کو متوجہ کر لیا۔ گلناز کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سمجھی کہ کوئی نیا نام لیا جائے گا، لیکن جیسے ہی اگلا جملہ آیا پردے کے اس پار سے مولوی صاحب کی آواز پر گلناز ساکت رہ گئی۔ دولہے کا نام منان خان ولد شمس الدین خان سے۔ آپ کا نکاح کیا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ اس کی سماعت پر بم بن کر گرے۔ گلناز کے کانوں نے جیسے ایک دھماکہ سنا تھا۔ اس نے چونک کر اماں کو دیکھا مگر اماں نے نظریں جھکا لی۔ پل بھر کو اس کا دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن گلمینا نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ گلناز کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دل میں ہنگامہ تھا، لیکن خاندان کی عزت اور اپنے دادا جان کی تنبیہ کرتی نگاہ نے اس کی زبان باندھ دی۔ قبول ہے۔ یہ 3 لفظ اس کے منہ سے نکلتے ہی کمرے میں ہلکی سی گہما گہمی ہو گئی، جبکہ پردے کے اس پار منان خان نے بھی نکاح کی منظوری دے دی۔ نکاح مکمل ہوا، سب نے مبارکباد دی، لیکن گلناز کے دل میں خوشی نہیں بلکہ ایک سوال گونج رہا تھا، میرا نکاح لالا سے کیوں ہوا اور مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اسے دھوکے میں کیوں رکھا گیا تھا؟ گلمینا نے بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ بہت زیادہ دکھی تھی۔
رخصتی کا منان خان نے شوشا چھوڑا تو گلناز نے دادا جان سے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ حویلی سے بھاگ جائے گی۔ انہوں نے منان خان کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا، ورنہ وہ دادا جان سے ضد کر رہا تھا گلناز کی رخصتی بھی دے دے۔ گلناز رات کو کمرے میں آئی اور کلمینا کو کمرے سے نکال کر رو رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا، گلناز اپنے کمرے کی کھڑکی سے بارش دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اس نے کتنی دعا کی تھی کہ جو بھی ہو اس کا شوہر لالا کی طرح نہ ہو، بس کھڑوس نہ ہو، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ کھڑوس اسی کے مقدر میں آن گرا تھا۔ کاش کہ وہ کبھی امریکہ سے واپس ہی نہ آتا، وہیں رہتا، لیکن نکاح سے پہلے اسے نہیں معلوم تھا کہ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی زندگی ایک دم سے بدل گئی تھی، سزا اسے مل چکی تھی، منان خان نے اپنی بات پوری کر لی تھی۔ گلناز اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے صحن کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس کی کزن رباب آہستہ آہستہ چلتی اندر آئی۔ رباب کی آنکھوں میں وہی شرارت تھی جو ہمیشہ گلناز کے لیے پریشانی کا باعث بنتی تھی۔ وہ خاندان کی ان چند لڑکیوں میں سے تھی جو ہر وقت دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کا شوق رکھتی تھی۔ گلناز، ایک بات پوچھوں؟ رباب نے مصنوعی ہمدردی کے انداز میں کہا۔ گلناز نے پلکیں جھپکائیں۔ کیا بات ہے؟ آج کل وہ گلمینا سے بات نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے گلناز نے پاس آنے کا موقع ملا، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا۔ وہ گلناز کو کزنز کی سیاست سے بچاتی تھی۔ رباب نے ایک آہ بھری، پھر چاروں طرف نظریں دوڑائیں جیسے کوئی سن نہ لے۔ بس ایسے ہی تم منان لالا کے ساتھ خوش ہونا؟ گلناز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ رباب مسکرائی۔ وہ جانتی تھی گلمینا نے اسے سختی سے منع کیا ہوگا کہ رباب کو کوئی بات مت بتانا۔ بس میں نے تو ایک بات سنی تھی، سوچا تم سے پوچھ لوں۔ گلناز کا دل دھڑکنے لگا۔ کیسی بات؟ رباب اور قریب آ گئی اور اپنی آواز دھیمی کرتے بولی۔ میں نے سنا ہے کہ منان لالا نے شادی سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ نکاح صرف نانا جان کی خوشی کے لیے کریں گے، باقی تو وہ شہر میں ایک اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ گلناز کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا، وہ لمحہ بھر کے لیے چپ ہو گئی۔ رباب کے الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوا ہے، گلناز نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، مگر دل کی گہرائی میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ اسے منان ویسے بھی پسند نہیں تھا، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس نے اپنی پسند کے باوجود اس سے نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی۔ اور وہ رخصتی کا شور وہ کیوں کر رہا تھا؟ ایک ساتھ دو لڑکیوں کی زندگی برباد کرنا چاہتا تھا۔ رباب نے بات ختم نہ کی۔ تم جانتی ہو نا، مرد تو بس برداشت کر لیتے ہیں مگر دل میں کسی اور کا خیال رکھتے ہیں۔ ویسے جب وہ باہر گئے تھے تو کسی کے ساتھ تھے، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی اور ہے اور زندگی میں کوئی اور تمہیں بس سزا دینے کے لیے نکاح کیا ہے۔ دادا جان بھی خوش ہو گئے۔ یہ بات سن کر گلناز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کس کے ساتھ تھا وہ وہاں؟ اس نے خود کو نہ روک پائی۔ رباب نے کندھے اچکائے۔ میں نے تو بس اتنا سنا ہے کہ وہ پرانی دوست تھی۔ خیر، تم مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں تو بس چاہتی ہوں کہ تم جان لو تاکہ تمہارا دل ٹوٹنے سے پہلے تم تیار رہو۔ گلناز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رباب کے جانے کے بعد وہ دیر تک سوچتی رہی۔ نکاح کے بعد رخصتی کا فاصلہ اختیار کرنا، غیر ضروری خاموشی، اور اب یہ بات، سب کچھ جیسے جڑتا جا رہا تھا۔ وہ ایک عورت کے ساتھ گزارا کرنے والا مرد نہیں تھا۔ وہ رباب کے جانے کے بعد برآمدے میں گھٹنوں میں سر دیے رات بیٹھی روتی رہی۔ جب منان خان اسے دیکھ کر برآمدے میں چلا آیا تو اس نے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، مگر گلناز نے صرف سر ہلا دیا۔ منان خان نے محسوس کیا کہ آج کا ماحول الگ ہے۔ وہ اسے اب سزا نہیں دیتا تھا، نہ ڈانٹتا تھا، نہ جانے پھر بھی اب گلناز کو کیا شکوہ تھا۔ وہ اسے نکاح کے بعد اب دکھائی دی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اداس لگ رہی ہو؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، گلناز نے مختصر جواب دیا تو منان نے غور سے دیکھا۔ گل، کچھ تو ہے، مجھے بتاؤ۔ گلناز نے نظریں جھکا لی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے یہ نکاح صرف دادا جان کے لیے کیا ہے؟ یہ سوال سن کر اس کے چہرے پر حیرت اور غصہ دونوں کے آثار نظر آئے۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ اس نے منع کیا تھا
गुलनाज को मालूम ना हो। उस छत वाली बात को जानकर दादा जान ने निकाह करवाया था। उसके नजदीक ये बचकाना बात थी। हम जानना चाहता है, गुलनाज ने दबे लहजे में कहा। मन्नान खान ने गहरी सांस ली। गुल, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। हाँ, निकाह का फैसला अचानक हुआ था, लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई? गुलनाज ने कुछ न कहा। उसे रुबाब का नाम लेना मुनासिब ना लगा, मगर शक का धुआं उसके दिल में फैल चुका था। मन्नान ने बात मजीद ना बढ़ाई, मगर उसकी आंखों में दुख साफ था। अगले दिन से दोनों के दरमियान एक खामोश जंग शुरू हो गई। बातचीत कम, नजरें चुराकर गुजरना ज्यादा। दूसरी तरफ रुबाब, जो हवेली रुकने के लिए आई हुई थी, उसने अपने मंसूबे की कामयाबी पर अंदर ही अंदर उसे खुशी हो रही थी। वो जानती थी कि अगर गुलनाज और मन्नान के दरमियान फासला आ गया तो खानदान की सियासत में कुछ लोग खुश होंगे, खासतौर पर मामूजाद फहद खान, जो रुबाब को बचपन से पसंद करता था और मन्नान को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसे हवेली की सरदारी का सुनकर नफरत हो रही थी, इसलिए उसने रुबाब के साथ मिलकर प्लान बनाया। इन दोनों के दरमियान नफरत का बीज बोकर इन दोनों को अलग कर देंगे और दादा जान रिश्ते की नाकामी देखकर हवेली की भाग दौड़ मन्नान खान के हाथ में कभी नहीं सौंपेंगे। चंद दिन बाद फहद खान ने रुबाब को एक कोने में रोक लिया। अच्छा काम कर रही हो, मगर ये खामोशी काफी नहीं, हमें इनके बीच एक बड़ी गलत फहमी डालना होगी। रुबाब ने भवें उठाई। कैसी गलत फहमी? फहद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना कि गुलनाज को यकीन हो जाए कि मन्नान खान अब भी अमेरिकन लड़की से राब्ते में है, फिर देखना खेल कैसे बदलता है। रुबाब के चेहरे पर वही अय्यारी उभर आई। तुम फिक्र ना करो, ये काम भी हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे के गले मिलकर दूर हुए। मैं जल्द इन दोनों को अलग करके तुमसे शादी करूंगा, बस एक बार मन्नान से बदला ले लूं। उसने रुबाब के हाथ की पुष्ट चूमते हुए कहा तो वह इस बात में सर हिलाने लगी। उसी रात गुलनाज के फोन पर एक नामालूम नंबर से तस्वीरें आईं, जिनमें मन्नान खान किसी कैफे में एक लड़की के साथ बैठा था। तस्वीरों में दोनों हंस रहे थे, करीब बैठे थे। गुलनाज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने वो तस्वीरें देर तक घोरी और आंखों से आंसू बह निकले। शक अब यकीन में बदल चुका था। तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा मन्नान खान, उसने तसव्वुर में से शिकवा किया। तुम मुझसे नजरें क्यों चुराती हो और मुझे देखकर गायब हो जाती हो? वैसे तुम मुंह उठाए आ जाती थी, मुंह भी दिखाती थी, अब क्या हो गया? मन्नान खान ने निकाह के 1 महीने बाद ही उसे छत पर देखा तो सीधा उसके पीछे वहां चला आया। मैं तुमसे डरता नहीं हूं, उसने इसकी आंखों में आंखें डाले कहा। इसने गहरी नजरों से उसे देखा। पहले देखकर नजरअंदाज कर देता था कि हक नहीं रखता था, लेकिन अब वो इसके निकाह में थी। उसे देखने का सिर्फ इसी का हक था। जानान, डरने की जरूरत भी नहीं है, डराने की जरूरत है। उसकी बात सुनकर गुलनाज ने हैरत से चेहरा उठाकर देखा। मैं तो रुखसती करवाना चाहता था, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। वो उसका हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा। गुलनाज ने दौड़ लगा दी और वो हैरत से उसके भागने पर देखने लगा। तुम मर्द एक जैसे होते हो, एक लड़की से दिल लगाकर दूसरी लड़की को शामिल कर लेते हो जिंदगी में। वो गुस्से से दरवाजे पर रुककर बोली और पलट गई। मन्नान खान को उसकी कोई बात समझ नहीं आई थी। कौन सी लड़की दिल में और कौन सी जिंदगी में थी? गुलनाज, मुझसे कब तक नाराज रहोगी? लाला ने मना किया था बताने से। वो छत से आई तो गुलमीना उसके पीछे थी। हम तुमसे नाराज नहीं हैं मीने, उसने सख्ती से उसे गले लगाकर कहा। वो सोच सोच कर थक गई थी, अब उसे गुलमीना का सहारा चाहिए था। रुबाब चाहे उसे कितना मना करे कि गुलमीना को मत बताना, लेकिन उसकी पक्की सहेली तो गुलमीना ही थी। वो गुलमीना को लिए आधी रात में बरामदे में शेल्टर के नीचे आई थी। आज भी बारिश हो रही थी। उसका शोर गुलनाज को पसंद था, इसलिए वो बात करने उसे वहां ले आई। बारिश की बूंदें इस वक्त बड़े सहन में गिरते हुए पत्थरों पर नन्हे मोतियों की तरह चमक रही थी। हवेली के बरामदे में मिट्टी की खुशबू हवा के साथ घुलकर एक अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी, मगर यह सुकून गुलनाज के दिल में नहीं था। उसने तमाम बातें गुलमीना के गोश गुजार की तो उसने गुलनाज की कनपटी पर हाथ मारा। नाज़े, मैं तेरा क्या करूं? तुझे पता है पुप्पा और उसकी बेटी जैसी फसादन है।
वो हवेली में लड़ाई के सिवा और करती ही क्या है, तो उनकी बातों में आकर लाला से रिश्ता तोड़ने चली है। गुलमीना को इस पागल लड़की पर हैरत हो रही थी, जो बड़े यकीन से कहती थी कि मन्नान को पसंद नहीं करती, और अब रोग लगाए बैठी थी। मीने, ये देख तस्वीर। उसने मोबाइल गुलमीना की जानिब बढ़ाते कहा। हाँ, वाकई उसकी तस्वीरें थी। दिखा मुझे, एडिट ना हो। उसने मोबाइल हाथ में लेकर फौरन सारी तस्वीरें अपने मोबाइल पर सेंड करके चैट डिलीट कर दी। इस मामले में वो खुद लाला से बात करने वाली थी। तू फिक्र ना कर और रुबाब की बातें मुझे बता, उसका पत्ता मैं इस बार मुकम्मल साफ करूंगी। चुड़ैल, उसने गुस्से से कहा तो गुलनाज ने उसे देखा। मैंने रुबाब और फहद लाला को साथ देखा है। गुलनाज ने उसे देखते हुए एक और बम फोड़ा। क्या? कब? उसने हैरत से पूछा। फहद से उसके रिश्ते की बात चल रही थी और उसका जानना जरूरी था। लाला ने उसका हाथ चूमा था। वो छत पर खड़ी थी जब उसी बालकनी में वो मोहब्बत भरा सीन देखने को मिला था। गुलमीना के पैरों से जमीन निकल गई। उसे सांस नहीं आ रहा था। अब जरूरी हो गया था कि पता करे कि माजरा क्या है। उसे कमरे में भेजकर वो मन्नान खान का दरवाजा बजा रही थी। रात के 2 बजे का वक्त था। मन्नान खान ने नींद से डूबी आंखों से दरवाजा खोला। सामने मुंह छुपाई खड़ी गुलमीना को देखा। खैरियत है? उसने हैरत से वक्त देखा। लाला, जरूरी बात करनी है। उसने इधर उधर देखा। अंदर आओ। उसने रास्ता दिया और फिर दरवाजा बंद कर लिया। ये देखें लाला, नाज़े के दिल में शक का बीज डाला जा रहा है। ये रुबाब ने तस्वीरें दी हैं नाज़े को, वो आपसे नफरत करने लगी है। उसने मोबाइल दिखाते हुए कहा तो वो साकित रह गया। वो उसकी दोस्त थी लेकिन उससे मोहब्बत नहीं करता था, और उस दिन की गुलनाज की बात अब समझ आई थी, दिल और जिंदगी वाली। उसने गहरी सांस ली। बेवकूफ, उसने गुलनाज के लिए यही कहा था। फहद लाला इन सब में मिला है, नाज़े ने खुद देखा है। वो और रुबाब छुपकर मिलते हैं और यकीनन वो आपको सरदारी नहीं देना चाहता। ये सब उन दोनों का गेम है। उसने जल्दी से सब कुछ बता डाला। तुम फिक्र मत करो और गुल को रुबाब से दूर रखो, मैं दादा जान से बात करूंगा। उसने गुलमीना के सर पर हाथ रखकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। नाज़े, खुशकिस्मत है लाला। उसने जाते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। उसे तो वो खुद बताएगा। गुलमीना ने जानबूझकर उसे मन्नान के कमरे में भेजा था कि ताई ने कहा है लाला को नाश्ता दे आओ। वो तजब्जुब से उसे नाश्ता देने आई थी। कमरे में आते ही किसी को ना पाया। वो मुड़ने लगी थी कि उसकी आवाज़ सुनकर रुक गई। गुल, उसने सवालिया अंदाज से नाम पुकारा तो वो पलटी, लेकिन उसे शॉर्ट्स में देखकर गुलनाज ने घबराकर नजरें झुका ली। तुमने कपड़े नहीं पहना हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया। गुलनाज पीछे हटने लगी, मगर पीछे दीवार थी। वो दीवार से लग गई और दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। मन्नान खान इतना करीब था कि उसकी सांस की गर्मी महसूस हो सकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गुलनाज उसकी नजदीकी पर घबरा रही थी। उस दिन याद है क्या कह रही थी? अच्छा हुआ खड़ूस का निकाह हो रहा है। उसके सीने से पानी टपक रहा था। गुलनाज ने सांस रोकी हुई थी। वो उसकी कैद में थी। मैंने कब कहा? झूठ बोल रहा है तुम। वो घबराहट से बोली कि उसके लब मुस्कुराने लगे। मन्नान ने झुककर उसके कपकपाते लब कैद कर लिए। दूर हुआ तो गुलनाज के कदम लड़खड़ा रहे थे। तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी लड़की के करीब नहीं आया और ना ही मोहब्बत की। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत एक पागल लड़की गुलनाज से है। उसके सारे मोहब्बत पर गुलनाज के गाल तप उठे थे। उसने गालों को तपतपाया। क्या कर रही हो? उसे लगा गुलनाज पागल हो गई है। बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं गाल, इसलिए। उसने सच्चाई से बताया तो वो हंसने लगा। नाश्ता कर लिया तुमने? वो दूर होते हुए उसकी जान बख्श गया। हाँ नहीं। उसे समझ नहीं आया था कि क्या कहे। उसने हाथ थामकर उसे अपने सामने बिठाया और उसे नवाले बनाकर पराठा खिलाने लगा। मुझे तुमसे निकाह करना ही था। तुमने दिल में मोहब्बत डाल दी थी, लेकिन दाजान के निकाह वाली बात हजम ना हुई। लेकिन बाद में एहसास हुआ मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। ये चंचल पागल लड़की सिर्फ मेरी है। वो उसकी नाक दबाकर बोला। गुलनाज के दिल ने कहा, जानान। वो मुस्कुराई तो मन्नान ने उसे देखा।
क्या हुआ? वो हैरानी से पूछने लगा। कुछ नहीं, बस यूं ही। वो बता नहीं सकती थी इस खड़ूस को दिल ने अब क्या लक़ब दिया था। वो जब उसके कमरे से आई तो गाल तप रहे थे और गुलमीना ने देखकर जो उसकी क्लास ली, तौबा। उसने आइंदा मनान को देखने से भी तौबा कर ली, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ। वो जब दाजान के साथ मर्दान खाने में अकेला कोई बात कर रहा था, गुलनाज उन्हें चाय देने आई। उसने पर्दा नहीं किया हुआ था। गुलनाज, तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? दाजान ने हैरत से पूछा। ये मेरे शौहर हैं दाजान, इनसे भी पर्दा करूं? मनान खान ने हंसी रोकने के लिए कप लबों से लगा लिया। दादा जान ने नफी में सर हिलाया। बड़ी बेशरम हो गई है। उसे याद आया ऐसा ही कुछ वो मनान के लिए कह चुकी थी। मनान ने उसे मुस्कुरा कर देखा। वो भी बदले में मुस्कुरा कर आंख दबा गई और वो उसके जाते ही कहकहा लगाकर हंसा। शुक्रिया दाजान, ऐसा अनोखा पीस मेरे नाम करने के लिए। और दादा जान हंस पड़े। दादा ने उसी रात सबको जमा किया और अपनी जगह मनान खान को दे दी और फहद रुबाब का रिश्ता भी कर दिया। सबने ये कहा कि उन्हें मालूम है उनकी हवेली में किसी साजिश हो रही है, इसीलिए वो सबको हिस्सा दे रहे हैं। और उन्होंने सबको हिस्सा देकर पूछा कौन जाना चाहता था, और उनमें पहला इंसान फहद था। उसने जाने का फैसला कर लिया था। दादा ने उसे खुशी से कहा कि चला जाए। गुलमीना का रिश्ता गुलनाज के लाला से तय पाया था और वो खुश था कि उसे गुलमीना जैसी समझदार लड़की चाहिए थी। हवेली में अब सुकून सा आ गया। मनान की जिद पर गुलमीना की शादी के साथ गुलनाज की रुखसती भी रख दी गई। हवेली के सहन में शाम के वक्त हल्की हल्की हवा चल रही थी। मगरिब की अजान के बाद सब मर्द बैठक में और औरतें किचन या अपने कमरों में मसरूफ थी। मगर गुलनाज का दिल अजीब सा था। उसे मालूम हुआ था अगले महीने उसकी रुखसती है। वो मनान को देखना चाहती थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। गुलनाज सहन में कपड़े सुखा रही थी कि पीछे से किसी के जूतों की चरचराहट सुनाई दी। वो पलटी तो वही लंबे कद का, हल्की दाढ़ी वाला, आंखों में शरारत लिए मनान खान सीने पर बाजू लपेटे खड़ा था। ये बार बार घूरते क्यों हो? कोई काम है तो सीधा बताओ, वरना जाओ अपना रास्ता नापो। गुलनाज ने कपड़े झटक कर रस्सी पर डाले। उसकी बात सुनकर वो हंस दिया। काम है, मगर तुमसे पूछ कर नहीं, तुम्हें बता कर करूंगा। गुलनाज ने तेवरियां चढ़ाई। वाह जी, इतनी जुर्रत। गुलनाज उसे देखकर दिल से खुश हुई थी और दिल की बेकाबू होती धड़कन उसे डपट रही थी। लेकिन दिल किसी की कब सुनता है? हाँ, क्योंकि तुम्हें गुस्से में देखना मजा आता है। उसने जेब में हाथ डालकर बड़े सुकून से कहा तो गुलनाज ने मुंह बना लिया। लोग फूल देते हैं खुश करने के लिए, और तुम हो कि हमको लड़ाकर खुश होते हो। वो मुस्कुराया। फूल तो बाद में दूंगा, पहले तुमसे ये सुन लूं कि तुम मेरी बातों से नाराज होती हो या दिल में हंस रही होती हो। वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। उसे छूने की दिल जिद कर रहा था, लेकिन गुलनाज के वहां से भाग जाने की डर की वजह से वो ये जुर्रत नहीं कर पाया। हाँ, दिल में तुमको जूते मार रही होती हूँ, गुलनाज ने तेज लहजे में कहा, मगर उसकी आंखों में हल्की मुस्कुराहट झलक गई। वो झुककर उसके करीब आया। तो फिर वो दिल वाला जूता कब फेंक रही हो मुझ पर? मैं पकड़ने के लिए तैयार हूँ। गुलनाज ने फौरन पीछे हटते कहा, दूर रहो मुझसे, वरना घर वालों को बुला लूंगी। उसने घूरते हुए धमकी दी। उसकी उर्दू गुलमीना गुलनाज के कहने पर ठीक कर रही थी। वो खुद को मनान खान के लायक बना लेना चाहती थी। बुला लो, मगर फिर समझाना तुम्हें ही पड़ेगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, कुछ और हूं। गुलनाज ने हैरानी से उसे देखा। कुछ और? वो हंसा। हाँ, बस समझ लो, वो जो हर वक्त तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मैं तुम्हारा और तुम मेरी जानान। गुलनाज का दिल जोर से धड़का, मगर वो जबरदस्ती बोली, फिर भी मेरा मशवरा है ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, वरना मैं भी गुलनाज हूं। उसने मनान खान के सीने पर उंगली रखी जो उसके दिल के तार छेड़ गई। और मैं वो हूं जो गुलनाज को हराने की जिद, यानी उसे खुद से मोहब्बत करवाने की जिद कर बैठा है। दोनों की आंखों में एक अनकही मुस्कुराहट तैर गई और फिजा में हल्की सी शरारत घुल गई।